Dinesh, where are you traveling? Karan, where are you traveling, Karan? Okay, you're traveling to Rajasthan. वाह रे वाह, enjoy कर रहा, तो एग्जाम कैसे देगा तू? ऑनलाइन एग्जाम्स है? Yes, sir. Okay, traveling to Rajasthan, it's so hot. Which place in Rajasthan, Karan? Okay, students, let's come back. So when I speak about wave nature, ये सारे properties से students wave nature से होगी. Whereas particle natures के अंदर अगर तुम जाओगे तो तुम्हारा Compton's effect है, black body radiation है, कि आइंस्टाइन photoelectric emission के बारे में है, जो शायद तुम लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा था. Photoelectric effect भी कंसिडर, तो वो सारे पार्टिकल नेचर पे चला जाता है. प्लैंक्स कांस्टेंट के हिसाब से चला जाता है. क्वांटम थ्योरी भी कंसिडर. तुम्हारा यहाँ पे वेव नेचर, तो इट वाज हाइजीन से पुट फॉरवर्ड दैट द वेव प्रोपगेट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम अ वेव फ्रंट एंड वेव नॉर्मल. Now, how exactly a wave front and a wave normal has been formed? Because this is an important part which the students should keep in mind. Whenever I speak about propagation of wave, means light wave, if I happen to consider students, what exactly light waves are? Students, light waves are simply electromagnetic waves. That means when I consider an electric field and a magnetic field, students, if are mutually perpendicular to each other, if I take electric field and magnetic field when they're mutually perpendicular to each other, students, the resultant of this wave is your electromagnetic wave, we consider. अगर सपोज मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को मैंने जे कैप ले लिया, इसको मैंने के कैप ले लिया, तो इसको मैं आई कैप ले लूंगा. Am I getting it? Now, if I happen to consider the waveform in this case, for every electric field vector, there is a magnetic field. Students, अभी तो डॉटेड वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन उनका पोजीशन चेंज होता रहेगा. यानी दिस इज हाउ द वेवफॉर्म इज. दिस इज व्हाट योर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेवफॉर्म. ये होगा वेवफॉर्म फॉर मैग्नेटिक फील्ड. This is a waveform for magnetic field. And when you see over here, the magnetic field at times in this manner, it's like this. लेकिन जैसे वहां पे चला जाएगा, अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा. देखो ये दो डॉट्स यहाँ पे आ गए, वापस तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आएगा. When you consider again the magnetic field is going to be in this direction. Your electric field will be in this direction. That means they change their position all the time, but every time they are mutually perpendicular to each other. Means for every electric field, there will be a magnetic field, students, mutually perpendicular to each other, and the result is called as your electromagnetic waves. These electromagnetic waves, they propagate in a medium, they can propagate through vacuum with the speed of how much? We all know it, it's 3 × 10⁸ meter per second. They are transverse in nature from a faultnet crest and trough, and that was put forward by Heinrich Hertz, we consider. Now, when I speak about कि ये जो wave nature है, वो किसके ऊपर depend होता है? Wave front or wave normal? तो ये भाई geometry है, students. How do you understand कि wave front कैसे form होता है, wave normal कैसे form होता है, students? Let us understand that part of it. So now, suppose if I consider a source, I'll consider this as my primary source. Think an example of, for example, you have a surface of water and the water is stationary. You drop a stone over there, students. Okay, when you drop a stone over here, what exactly you get it? You'll get ripples. You'll get ripples in all directions because the wave moves in all directions. Because if I happen to consider these waves are traveling in a given plane, students. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? Students, हम water waves के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. सिखा रहा हूं मैं water waves के हिसाब से. Hello students, दिखा रहा हूं मैं water waves के हिसाब से. लेकिन actually ये point imagine करो कि space में. Because when I'm speaking, the sound energy which is of mine is moving in all directions. It's 3D concept, goes in all directions we consider. Likewise, light moves in all directions, to my right, to my left. यानी कहाँ पे भी जा सकती है, लेकिन यहाँ पे एक प्लेन पे है. तो इसको वाटर वेव्स के हिसाब से मत सोचना, इसको लाइट वेव्स के हिसाब से सोचना. कि अगर मैंने कोई सोर्स लिया है जिसको मैं बोलूंगा पॉइंट सोर्स, वो पॉइंट सोर्स यानी प्राइमरी सोर्स पी पे है. अगर वहां से लाइट प्रोपोगेट की तो लाइट विल मूव इन ऑल डायरेक्शन वी कंसिडर. Now suppose if I say in time t, if I consider the speed of light in a given medium is v, because all of you know it, refractive index of a given medium is defined as speed of light in air or vacuum. Speed of light in air or vacuum to what? Speed of light in that medium. Agreed, students? Refractive index of medium is always considered with respect to either air or vacuum. So speed of light in air or vacuum upon speed of light in given medium. तो सबको पता है. यानी अगर मैं कोई मीडियम लेता तो स्पीड इज वी, और वो गिवन मीडियम के अंदर कांस्टेंट रहेगा. जब तक उसका ऑप्टिकल डेंसिटी तुम चेंज नहीं करोगे, स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगा. तो थिंक एज इफ द टाइम टेकन इज t, v is we consider.
Now suppose if I tell you to find out what is the distance covered by the wave. Distance covered, since we know that speed is equal to distance upon time, so what exactly we consider distance is equal to speed into time? यानी ध्यान से देखना, तुम्हें स्पीड पता है, हाँ सर, टाइम तुमने कांस्टेंट रखा है, तो व्हाट अबाउट द डिस्टेंस कवर्ड? सो द डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स इन ऑल दीस डायरेक्शंस विल रिमेन द सेम. So in a given time t, suppose if I say 1 2 3, there is a fourth crest, this is the fourth crest. Likewise 1 2 3, fourth crest, 1 2 3, fourth one. Again I can consider as 1 2 3 and fourth one. If I try to construct it, what am I trying to get it? You are going to get a sphere. Yani students, if I happen to construct a region around this particular primary source at a given velocity in a given medium in a given time, the distance covered by light wave in all the direction remains the same. यानी अगर तुम यहाँ पे suppose अगर तुम particle को देखते हो, suppose if I say the particle is A, and if that point if I consider it at crest, even this particle is also at crest. This particle is also A1, A2, A3 and A4. All of them are at positive extreme. यानी अगर इसका phase अगर मैंने कुछ बोला phi 1, then the phase of this also will be same. The phase of this also will be same. The phase of this. What exactly students phase speaks about? What exactly phase means, students? Phase का मतलब क्या है? What exactly speaks about? Students, what exactly phase is? Of course, Sanya, absolutely correct. Locus of points. That means phase means what? All these particles are vibrating in the same state of oscillation. यानी अगर ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है तो सारे पॉजिटिव एक्सट्रीम है, तो ये सारे क्या हुआ? लोकस ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट. तो स्टूडेंट्स ये जो है सारे जितने पार्टिकल्स आर इन सेम फेज, अगर मैं वहां पे एक इमेजिनरी स्फीयर कंस्ट्रक्ट करता हूं तो ये हो जाएगा मेरा स्फेरिकल वेव फ्रंट. यानी ये वेव फ्रंट का कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ. उसके लिए हमें चाहिए क्या? सर हमें पॉइंट सोर्स चाहिए. क्या तुम्हें पॉइंट सोर्स मिला हुआ है? हाँ सर पॉइंट सोर्स मिला हुआ है, मुझे स्फेरिकल वेव फ्रंट मिला है. अभी ये वेव को आगे कैसे प्रोपगेट करोगे? हेलो स्टूडेंट्स, आगे कैसे प्रोपगेट करोगे? तो अभी तुम क्या बोलोगे? सर अभी हम A1 को सोर्स पकड़ते हैं. ध्यान से सुनना, अगर मैं A1 को सोर्स पकड़ता हूँ तो ये मेरा प्राइमरी सोर्स हो जाएगा, ये मेरा सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा. अभी यहाँ से वेव को तुम कैसे करोगे? तो सर ऐसा करते हैं ना, वेवलेट्स ड्रॉ करते हैं. क्या कहते हैं? वेवलेट्स. वेवलेट कैसे ड्रॉ करोगे? सर वापस ऐसा करते हैं ना, वेव तो उसी मीडियम में जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी सेम होगी, टाइम को हम कांस्टेंट रखते हैं, तो एक डिस्टेंस हमें मिलेगा. तो मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम ए स्टूडेंट्स आई एम ट्राइंग टू कंसिडर अ वेवलेट. एक छोटा सा स्फेरिकल पार्ट आई एम ड्राइंग. ये मेरा वेवलेट हुआ जो आगे की तरफ भी दिखाई दे रहा है और पीछे की तरफ डॉटेड किया है. अभी देखो A2 को मैं वेवलेट बना रहा हूँ, अगर A2 को मैं सेकेंडरी सोर्स बना रहा हूँ तो यहाँ पे भी तो मेरा वेवलेट आएगा. Students, see the distance covered. The distance covered over here and the distance covered over here will be exactly the same. अगर ये A1 है तो ये B1 होगा. ये तुम्हारा प्राइमरी सोर्स, ये सेकेंडरी सोर्स, ये टर्शियरी सोर्स हो जाएगा. स्टूडेंट्स कुछ समझ में आ रहा है? स्टूडेंट्स, are you all getting it? How Yes, exactly these wave fronts and wave normals are, how exactly propagation of wave is taking place? यानी तुम्हारा ये वैसे यहाँ पे ये तुम्हारा प्राइमरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स, तो यहाँ पे तुम्हें एक टर्शियरी सोर्स मिलेगा P2. क्या उसका डिस्टेंस सेम है? हाँ सर, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. वैसे यहाँ पे भी तुम्हें मिलेगा. इफ आई कंसीडर दिस मैनर in all the direction I can consider. Is this clear? sir, can you repeat what you did? Right. What I did is, students listen carefully. My source was at point P. Primary source was at point P. Agreed. Taking distance is equal to speed into time, I constructed an imaginary sphere. What is a sphere? I can consider as a spherical wavefront. Why is it so? Because all these particular points on the given sphere, they are at equal distance from the point source. तो यहाँ पे जो लाइट वेव होगा, यहाँ पे जो लाइट पार्टिकल होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, सारे particles will be in same phase. That means all those particular light waves will be in same phase, same state of oscillation, and that is called as locus of points. तो ये तुम्हारा प्राइमरी सोर्स हुआ, ये तुम्हारा सेकेंडरी सोर्स हुआ. अभी मुझे ये वेव को आगे प्रोपोगेट करना है. स्टूडेंट्स, हाइजीन ने क्या बताया था कि वेव लाइट आगे कैसे जा रही है? आगे जा रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट एंड वेव नॉर्मल.
तो ये मैंने वेव फ्रंट बना दिया। इसी का देखो ये परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ कर दूं, एक एरोहेड बना दूं, तो ये क्या बन गया? वेव नॉर्मल बन गया। देखो ये वेव नॉर्मल हो गया। इसी को अगर मैं बता दूं तो ये वेव नॉर्मल हो गया। ये भी अगर मैंने परपेंडिकुलर को आगे ले लिया तो ये वेव नॉर्मल हो गया। ये क्या हुआ? वेव नॉर्मल। यानी ये मेरा प्राइमरी सोर्स, ये मेरा सेकेंडरी सोर्स। अभी तुम बोलोगे सर इसके आगे तुम्हारा वेव कैसे जाएगा? तो अगेन बी को सोर्स पकड़ो ना स्टूडेंट्स, बी को सोर्स पकड़ो, B1 को सोर्स पकड़ो, डिस्टेंस b इंटू टी ले लो, वापस एक स्फीयर ड्रॉ करो। अभी देखो ये मैंने सारे स्फीयर्स ड्रॉ किए। अभी इसका मैं टैंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। ये टैंजेंट ड्रॉ किया ब्लू इंक से। स्टूडेंट्स ये टैंजेंट क्या हुआ? ये टैंजेंट क्या बन गया? सर ये मेरा स्फेरिकल वेवफ्रंट है, ये भी मेरा स्फेरिकल वेवफ्रंट ही हुआ। यानी कुछ समझ में आया ना स्टूडेंट्स? हाँ मेरा पॉइंट सोर्स, लेकिन पॉइंट सोर्स से हमें क्या मिला? पॉइंट सोर्स से हमें क्या मिला? So because of wavefront and wave normal, I started getting spherical wavefront, and this is how I'm going to get spherical wavefront. I'm going to get spherical wavefront. कैसे? ये primary source, ये secondary source, ये tertiary source, ये further source. हर एक को अगर मैं source draw करूँ तो मैं यहाँ पर wavelet draw करूँगा, यहाँ पर मैं wavelet draw करूँगा, यहाँ पर मैं wavelet draw करूँगा। I'll consider ये सारे wavelet हैं, I getting it? और उसी wavelet के अगर मैं tangent draw करूँ, tangent draw करूँ, tangent draw करूँगा तो मुझे wave front मिलेगा। इसी को अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा तो ये क्या मिलता है? डायरेक्शन ऑफ वेव। तो वो क्या बन जाएगा? वेव नॉर्मल। कैन यू सी नाउ द वेव इज प्रोपोगेटिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन? यस। कैसे? इन द फॉर्मेशन ऑफ वेव फ्रंट एंड वेव नॉर्मल। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Students, is this part Yes, clear to sir. all of you? If this is clear, then only I'll be able to proceed further. Otherwise, because in the diagram also when you move further, you can't move further unless until this thing is clear. Students, is it clear to all of you all? Yes, sir. Sir. Yeah. Yes, sir. Okay, so now we have got spherical wavefront from a point source. तो जैसे जैसे आगे जाएगा तो वेव आगे की तरफ जाएगा। तुरंत वहां पे स्टूडेंट पूछेगा, सर आपने जब ये वेवलेट ड्रॉ किया, ध्यान से सुना स्टूडेंट, आपने जब ये वेवलेट ड्रॉ किया और आपने इसको सोर्स लिया, हेलो, इसको सोर्स लिया, तो सर इसकी इंटेंसिटी आपने आगे की तरफ ही क्यों बताई? है ना सर, वेवलेट तो पीछे भी जा रहा है, और है ना, है कि नहीं? पीछे भी जा रहा है। इसका भी अगर मैं यहाँ पे अगर मैं ये टैंजेंट ड्रॉ करूँ तो सर यहाँ पे भी तो मुझे एक वेवफ्रंट मिलेगा। लेकिन स्टूडेंट्स हम इंटेंसिटी पीछे की तरफ नहीं लेते। द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू 2 विल बी 0। व्हाट इज द एंगल फॉर्म बिटवीन दीस टू? मुझे बताओ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द एंगल फॉर्म बिटवीन दीस टू? इज इट 180? इज इट 180? व्हाट इज cos of 180? -1. What is the -1. resultant intensity? What is the resultant intensity in the backward direction will be? 0. कभी जाके स्टूडेंट्स हमेशा हम पीछे वाले इंटेंसिटी को कभी भी नहीं दिखाते हैं। यानी जब भी तुम जितने भी टेक्स्ट बुक के डायग्राम देखोगे ना स्टूडेंट्स, वेव फ्रंट और वेव नॉर्मल, आगे वाले सारे तुम्हें परफेक्ट स्फीयर्स दिखाएंगे, पीछे के डॉटेड दिखाएंगे। They'll try to show you dotted this one and this will be complete sphere. This shows that the energy is set to move in the forward direction. We are trying to neglect the energy going in the backward direction. क्या ये clear हुआ सबको? Yes, sir. Yes, Please. sir. If in Yes, case sir. you must have done oscillations. There's oscillations going on or started, or SHM is going on or started, or something like that sort. So it's going on. So शायद have you all come across the formula for resultant intensity, students, if amplitudes are given to you? Two waveform का different amplitudes दिया है, तो can you get your resultant intensity? Did sir give you any kind of relation like this? Resultant intensity is equal to I1 plus I2 plus 2 under root I1 I2 cos of P, and P is a phase difference. ऐसा कुछ इक्वेशन दिया है? अभी देखो मैं ये इक्वेशन यूज कर रहा हूँ। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन आगे का और पीछे का वेव फॉर्म में? क्या होगा फेज डिफरेंस? 180 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. तो ये क्या होगा? cos of 180 होगा। एग्रीड? एग्रीड? आया ना? Yes, sir. Yes, sir. 180, what is cos of 180? Will it be -1?
Yes, sir. यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। अभी मुझे बताओ, लाइट आगे की तरफ जा रही है, लाइट पीछे की तरफ जा रही है, इंटेंसिटी तो दोनों तरफ सेम होगी, है ना? लेकिन हम Yeah. पीछे की तरफ इंटेंसिटी क्यों नहीं पकड़ रहे? यानी मेरा I1 इज इक्वल टू I2 प्लस Yes, sir. I1 इज इक्वल टू I2, लेकिन विद व्हाट साइन? Minus sign. तो ये क्या होगा? 2i, रूट ऑफ I into I स्क्वायर हो जाएगा, तो ये -2i, तो प्लस 2i minus 2i, व्हाट इज द रिजल्टेंट? 0, 0 is the resultant. Are you getting it? That's why we do not consider the influence in the backward direction. Is this clear, students? Yes, sir. So the energy is said to move always in the forward direction, students. And how does the energy propagate? Tomorrow answer is the energy always propagates in form of wave fronts and wave normal. What is wave front? The tomorrow answer on wave front is a locus of points which are equidistant from a given point, and all those particles in that particular wave front vibrate in same phase. Whereas what exactly wave normal? Wave normal always shows the direction of wave. It is always perpendicular to the wave front, we consider. And this is a spherical wave front. Spherical wave front कैसे मिलता है? By using a point source. अगर suppose मैंने screen नजदीक रखा students, अगर suppose मैंने यहाँ पे screen रखा, तो मुझे spherical wave front मिलेगा. लेकिन अगर suppose मेरा screen infinite distance पे students, the screen is at infinite distance. Suppose if I consider screen is at very far distance, तो उसमें क्या होगा students? If the screen is at an infinite distance, then in that case, what kind of wavefront I'm going to get it? Will I get spherical wavefront or will I get a plane wavefront, students? क्या बोलोगे? Suppose if the screen is taken at very far, of course, Sanya, plane. तुम्हारा देखो ये जो spherical wavefront है, ये जो spherical wavefront है, वो spherical wavefront बाद में क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? Plane हो जाएंगे. तो अगर किसी ने पूछा students, how can you get a plane wavefront from a point source? How can you get a plane wavefront from a point source? First method is what? Try to take the screen at a very far distance. Agree? Yes, sir. Keep the source Yes, and the sir. screen at a very far distance. Can I get a plane wavefront? Enough? लेकिन अगर मैंने तुम्हें बोला students, try to get a plane wavefront. Listen carefully, students. Try to get a plane wavefront from point source. Try to get a plane wavefront from a point source in a finite distance. चलो तो कैसे करोगे? Question समझ में आया students? Try to get a plane wavefront from a point source in a finite distance. क्योंकि जब भी तुम एक्सपेरिमेंट के लिए जाओगे स्टूडेंट्स, तो वहां पे तुम लैब में जाओगे, इसके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तुम लैब में जाओगे तो ये एक्सपेरिमेंट में हमें हमेशा प्लेन वेवफ्रंट चाहिए, हमें स्फेरिकल वेवफ्रंट नहीं चाहिए. तो प्लेन वेवफ्रंट के लिए तुम क्या करोगे? सोर्स को एक तरफ रखोगे और तुम क्या लैब के दूसरे एंड तक चले जाओगे? हाँ, लैब का इतना लंबा डिस्टेंस है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है, वहां पे तुम स्क्रीन करके तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे नहीं. हर एक स्टूडेंट को एक फाइनाइट लेंथ दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल बेंच. वो ऑप्टिकल बेंच के ऊपर ही उतने डिस्टेंस में ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है. तो यहाँ पे स्टूडेंट सोचेगा, अरे यार ऐसे कैसे पॉसिबल? दिया है हमें पॉइंट सोर्स, एक्सपेरिमेंट में चाहिए प्लेन वेवफ्रंट, लेकिन डिस्टेंस दिया है फाइनाइट. प्लेन वेवफ्रंट कभी मिलेगा? जब भी हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाते हैं. Now my question to you is, if I give you a point source, I want a plane wavefront at a finite distance, तो कैसे करोगे? Anybody? Students, did you get the question? Question समझ में आया? हाँ students? Yeah, sir. तो कैसे करोगे बताओ? Finite distance में मुझे plane wavefront चाहिए, considering point source. तो तुरंत स्टूडेंट्स बोलेगा, अरे सर 10th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पढ़ा है ना, क्या कर रहे हो आप सर? अब देखो ना, अगर आपने कैंडल लिया तो ये कैंडल मेरा पॉइंट सोर्स हो गया, प्राइमरी सोर्स हो गया. ये कैंडल का यहाँ पे मैं एक सेंट्रल एक्सिस लूंगा, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा. और ये मेरा ऑप्टिकल बेंच, आपने बोला ऑप्टिकल बेंच यानी मैं ऑप्टिकल बेंच के अंदर रेलिंग होती है. स्टूडेंट्स तुम आगे पीछे कर सकते हो कैंडल को. सर ऐसा करते हैं ना, यही रेलिंग के अंदर मैं एक कॉन्वेक्स लेंस रख दूंगा बीच में, और फिर मेरा स्क्रीन रखूंगा. ये मेरा स्क्रीन आ गया. स्क्रीन का भी मुझे स्टैंड मिलेगा, ये मेरा स्क्रीन आया और ये स्क्रीन का स्टैंड.
ये स्क्रीन का स्टैंड, ये लेंस का स्टैंड और ये कैंडल का स्टैंड और ये ऑप्टिकल बेंच एक्सपेरिमेंट है 100-150 सेंटीमीटर, द लेंथ इज 100 to 150 सेंटीमीटर, बस उतने लेंथ के अंदर चाहिए। अभी मिल गया कि नहीं मिला? अरे हाँ सर, ये तो कॉन्वेक्स लेंस है, यानी अगर मैंने सोर्स को फोकस पे रखा तो ये तो पॉइंट सोर्स होगा। चलो इसके आगे मैं कार्डबोर्ड भी डाल दूं तो मुझे पॉइंट सोर्स आ गया। पॉइंट सोर्स से होगा क्या, आएंगे तो सारे स्फेरिकल, सारे स्फेरिकल, यानी जितने भी स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो सारे कहाँ पे जाएंगे, लेंस को स्ट्राइक करेंगे। जितने भी Yes, sir. स्फेरिकल वो सारे लेंस को, लेकिन सिंस दे आर प्लेस्ड एट द फोकस, students rays which are coming out from the focus after passing through a convex lens, a convex, how they are going to go parallel to the principal axis. Parallel. So am I getting a plane wavefront now? Yes, sir. समझ में आया स्टूडेंट्स? यानी अभी क्या करोगे मालूम है, तुम यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है ना स्टूडेंट्स, इनको तुम सोर्स पकड़ लो। ये देखो ये P1 है, ये तुम्हारा A1 A2 A3, ये तुम्हारा सेकेंडरी सोर्स हो गया। अभी यहाँ से तुम क्या करो, तो यहाँ से आप वेवलेट ड्रॉ करना शुरू करो। वेवलेट ड्रॉ, डिस्टेंस क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, V into T, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। अरे हाँ सर, प्लेन वेवफ्रंट आ, फिर ये तुम्हारा सोर्स बन जाएगा। स्टूडेंट ध्यान से सुनना, ये सारे पॉइंट्स तुम्हारे सोर्स बन जाएंगे। वापस वेवलेट ड्रॉ करो, वापस वेवलेट ड्रॉ करो, वापस वेवलेट ड्रॉ करो, वापस वेवलेट ड्रॉ करो, पीछे की तरफ ही जाएगा, लेकिन इंटेंसिटी हमें पीछे नहीं लेनी है। इसी को एक टेंजेंट ड्रॉ करो। अरे हाँ सर, प्लेन वेवफ्रंट मिला। कैन आई से नाउ द वेव इज प्रोपोगेटिंग द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये हुआ तुम्हारा वेव फ्रंट, और ये जो परपेंडिकुलर दिखा जा रहा है वो वेव नॉर्मल। वेव नॉर्मल एंड वेव फ्रंट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एग्रीड? Yes, sir. Now you move further and with respect to your concept, yani one should know how to get the wavefront and wave normal student. Again, from point source we get spherical wavefront. अगर मैंने suppose cylindrical wavefront लिया, cylindrical source लिया, तो मुझे spherical wavefront, sorry, cylindrical wavefront मिलेगा. Because there are different kind of wavefronts we can consider. So when somebody asks you how can you get a plane wavefront in a finite distance, तुरंत तुम्हारा answer होना चाहिए sir, place a convex lens of suitable focal length and the source is placed at the focus. If source point source is placed at the focus and a convex lens, a converging lens is placed in front of it, considering this at the focus, I'm going to get plane wavefront. क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ students? Yes, sir. Okay. Now let us understand reflection through a concept of wavefront and wave normal. These are the properties. अब देखो तुम्हारे properties में कौन सी है मालूम है? Reflection है, refraction omitted है, interference है students, interference है, diffraction है, polarization, scattering is not there. यानी कुछ part है, कुछ part omitted है. Those who had in 2021 the same thing you all also have. Like students for JEE mains and advanced, everything will be there. No cut down, please. So when you're doing your JEE studies, advanced or NEET, see to that you do it properly. Okay, now students, we are understanding about reflection. Okay, reflection of monochromatic light through surface. Okay, the word monochromatic is single color, single frequency, single wavelength. अभी इसको समझने के लिए क्या करोगे? आंसर सुना students. How to understand the diagram? Okay. Yes, one color, single frequency, single wavelength. Okay. अगर suppose मैं एक mirror लेता हूँ, ध्यान से सुनो, ये मेरा mirror है. Okay. ये M1, M2 is the mirror. मैं करेंगे reflection है, because you're understanding reflection. तो ये तुम्हारा सिल्वर सरफेस हो गया. इनर इज रिफ्लेक्टिंग, आउटर इज सिल्वर. ओके, हमें अंडरस्टैंड करना है रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए तुरंत तुम्हें ये पता होना चाहिए कि सर जब भी आप एक्सपेरिमेंट पूरा कंप्लीट करोगे तो ये जो एक्सपेरिमेंट है इट शुड फुलफिल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नॉट साउंड. बट एज सच लाइट और साउंड का लॉज सेम है. वहां पे इंसिडेंट साउंड इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड साउंड. यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस formed by the incident ray with the normal is exactly equal to the measure of angle of reflected sound or reflected wave.
with the normal, यानी तुम्हें I is equal to R अगर तुम्हें मिलता है करेक्ट तो तुम्हारा ये कंप्लीट होता है। समझ में आया? यानी रिफ्लेक्शन को समझने के लिए एट द एंड ऑफ द एंटायर एक्सपेरिमेंट यू शुड गेट I equal to R. Is this clear with all of you? Yes, sir. Now, Yes, when I sir. consider this, how do you go about the diagram? Let me go for the first concept in that case. What I'll do is, students, I'll try to draw two normals in this case. ये एक पहला नॉर्मल आया मेरा और एक दूसरा नॉर्मल आया। ये मेरा n1 आया और ये n2 आया। Okay, how to go about the diagram also, students? Now try to take some incident ray students. ये देखो, ये मेरा एक पहला incident ray आया, दूसरा रे exactly इसको parallel. Try to shift your scale parallel because this is by geometry. हाँ, उसको एग्जामिनेशन रूम में भी करोगे तो हॉल में करोगे पेपर के ऊपर तो अच्छी तरह से करना चाहिए। Don't just blindly go for it. Okay, don't just try to draw straight body diagram, free diagram. Okay, ये तुम्हारा second ray. तो ध्यान से सुनना students. Suppose if I say these are my point source, ये मेरा एक source A है. Okay. Now suppose if I say that these are the light which are moving in the forward direction. Think as if they're coming from point source. तो ये A है. Let me take this as point C. मुझे ये बताओ students, ये जो AC को अगर मैं join कर दूं तो तुम्हारे हिसाब से what exactly line AC segment AC is called? मुझे ये बताओ. What is AC stand for? क्या इसको हम वेव नॉर्मल बोलेंगे या वेव फ्रंट बोलेंगे? How come wave normal, my dear? Wave front होगा ना सानिया. These two particles are in same phase. इसका डायग्रामेटिक फॉर्म ध्यान से सुना. उसका मतलब क्या हुआ मन में? ध्यान से सुना. यहाँ पे मैंने एक सोर्स लिया है, यहाँ पे मैंने सोर्स लिया है, कार्डबोर्ड रखा है, पिनोल किया है. ओके, यहाँ से वेव आगे जा रहा है, यहाँ से वेव आगे जा रहा है. तो ये पॉइंट मैंने क्या किया है? एक पॉइंट को मैंने ए लिया, एक पॉइंट को मैंने सी ले लिया स्टूडेंट्स. तो ये क्या हुआ? ये देखा ना, ये तुम्हारा वेवलेट फॉर्म हुआ. टैंजेंट ड्रॉ कर दिया. ये मेरा टैंजेंट है स्टूडेंट्स. ये मेरा वेव फ्रंट हुआ. ये जो एरो हेड ब्लोइंग आगे जा रहा है वो हुआ मेरा वेव नॉर्मल. मैंने ये एसी के लिए पूछा. क्या ये क्लियर हुआ? तो ये Yes, तुम्हें sir. Yes, sir. AC stands for. Okay, so AC stands for your wave front, we consider. Now let us move further ahead. Now when I speak about the concept of reflection, students, what exactly consider? This is the angle as we consider. Okay, ये भी तुम्हारा एंगल है. अगर सपोज मैं यहाँ पे रिफ्लेक्टेड लाइट भी मैं ड्रॉ कर दूं, चलो मैं रिफ्लेक्टेड लाइट भी ड्रॉ कर दूं. Okay, so that angle of incidence is equal to angle of reflection. ये इंसिडेंट लाइट हुआ, ये रिफ्लेक्टेड लाइट हुआ. ओके, ये तुम्हारा आ रहा है, ये भी तुम्हारा आ रहा है. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड इन दिस. नाउ प्लीज पे अटेंशन, लेट अस गो फर्दर एट. व्हेन ए रीचेस टू बी, लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स. ये गिवन मीडियम है. मैंने एक मिरर रखा हुआ है स्टूडेंट्स, एक मिरर लिया हुआ है एंड सराउंडिंग इज एयर. व्हेन अ लाइट बीम रीचेस फ्रॉम ए टू बी इन टाइम t, कैन आई से द लाइट बीम फ्रॉम c विल रीच वेयर? विल से सर द लाइट बीम फ्रॉम c will reach on the incident light at a point somewhere where I drop a perpendicular. यानी I'll construct an arc, cut an arc. तो ये जो मेरा perpendicular drop होगा, यानी when A reaches to B, C is going to reach over here at point B. क्या ये clear हुआ students? Yes, sir. ये सबको clear हुआ? I'm trying to draw the reflected light थोड़ा सा हटके. It should not. So the blue ink, and please, when you are trying to understand also back at home, please use colors. Because if I try to draw my diagram, because in examination you can't use colors, students. In examinations you can't use colors. You have to use pencil itself. You make it dark and light. So देखो students, A reaches to B. Where exactly C is going to reach at point D? How do you get it? By dropping a perpendicular. तो मुझे ये बताओ, ये AC क्या था? सर वेव फ्रंट है. तो ये BD भी क्या है? Friends, what is BD? तो तुम क्या बोलोगे? Sir, BD is my wave front, but I. What does I stands for? Incident wave front. क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. ये जो परपेंडिकुलर है, ये क्या दिखाता है? सिर्फ ये दिखाता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. ये तुम्हारा वेव नॉर्मल है, ये वेव नॉर्मल है, ये वेव नॉर्मल है, वापस ये वेव नॉर्मल रिफ्लेक्ट हो. This is how it is. So when A reaches to B, C will reach at D. Now move further ahead. When D reaches to point E, students, when D reaches to point E, मुझे बताओ students, when D reaches to point E,
where exactly the reflected light according to you all will reach on the reflected beam? कहाँ पे जाएंगे बताओ? Reflected light कहाँ पे जाएगी? Yes, of a distance v into t, of a distance into v into t. लेकिन that will be equal to what? Since there is no loss of energy, ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे एनर्जी लॉस नहीं है, उसका मतलब मैंने ये जो मिरर लिया है ना उसका थिकनेस नेग्लिजिबल लिया स्टूडेंट्स, थिकनेस इज नेग्लिजिबल, हाईली पॉलिश्ड सरफेस मैंने लिया है, यानी विद टोटल एनर्जी जो स्ट्राइक होगा रिफ्लेक्ट, तो सेम थिंग यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होगा, यानी ये जो डिस्टेंस दी होगा स्टूडेंट्स, ये जो डिस्टेंस दी होगा एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस यहाँ से हम आर्क कट करेंगे, तो देखो ये डिस्टेंस को मैं राउंडर से मेजर करूंगा स्टूडेंट्स, आई हैव अ राउंडर, ओके, तो माय पॉइंटेड एंड ओवर हियर विल बी देयर, पेंसिल एंड विल बी ओवर हियर, ये डिस्टेंस को मेजर करूंगा, फिर मेरा पॉइंटेड एंड यहाँ पे रखूंगा एंड आई एम गोइंग टू कंस्ट्रक्ट व्हाट, सेमी सर्कल, सो आई एम गेटिंग अ सेमी सर्कल इन दिस केस, तो ये जो होगा यहां से अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये मेरा टैंजेंट बन जाएगा, so when D reaches to E, B will reach where at point F, and this is the tangent. Students, what does EF stands for? What does EF stands for? Then your answer will be, sir, EF stands for my reflected wavefront. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. ये देखो ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड लाइट है, BF is congruent to what? Sir, BF is congruent to DE. Why? Because sir, जितना डिस्टेंस लाइट कवर कर रहा है फ्रॉम D to E, उतना ही डिस्टेंस B to F तक जाएगा, और मैंने यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, ये भी आपका परपेंडिकुलर मींस नाउ व्हेन यू लुक इनटू इट यू हैव टू राइट एंगल ट्रायंगल्स स्टूडेंट्स, try to look into it, you have two right angle triangles, one of the triangle is BFE, जहाँ पे ये 90 है, दूसरा कौन सा है BDE स्टूडेंट्स, यहाँ पे what is BD we consider, so this is incident wavefront, what is EF, so this is reflected wavefront we consider, which angle is over here is I we consider, if you happen to look over here, which angle is I'll consider, if you look over here students, look over here, this is angle BFE, this is entirely is angle of incidence, ये पूरा angle of incidence है students, तो ये कितना होगा मुझे बताओ, ये कितना होगा 90 minus I, which 90 angle minus. which angle is 90 minus I, can I say FEB, Yes, FE, sir. this is 90 minus I, so can I say this angle will be I, क्या ये clear हुआ? Yes, sir. Whereas on the other side, students, try to go for the other side in this case. If you happen to look into it, students, which angle is angle of reflection we consider? This angle is angle of reflection. Pardon? Did anybody say something? Students, did anybody say something? No, sir. Her mic was open. Okay. My dear, ये जो 90 minus I होगा ना, वो DEB I'll take it. तो मेरा DBE होगा, ये angle I होगा. Not this. I'll take this. अभी देखो दूसरे के लिए क्या करोगे, तो ध्यान से देखना, अभी दूसरे के लिए तुम क्या करोगे, अगर मैं यहाँ पे देखो ये आग लेता हूँ तो ये कितना होगा, ये कितना होगा 90 minus R. यानी 90 माइनस आर, कौन सा हुआ F से शुरू है, देखो स्टूडेंट्स F से शुरू, ये रिफ्लेक्टेड बीम है F B BE. ये मेरा 90 माइनस आर, तो ये R हो गया, क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Are the two triangles said to be congruent? Yes. This is 90. This is also 90. This is hypotenuse. This is hypotenuse. We consider. Did we get BF is equal to D? Yes, sir. BF is equal to D. Already we have got it. The two triangles is said to be congruent by right angle hypotenuse side. So now if I happen to write on the correspondence, so can I say F B E corresponds to? यहाँ पे F है तो D आएगा. Is that clear? F B यहाँ पे D EB आएगा, and which are the angles if I consider? Suppose if I go for angle FEB, तो यहाँ पे कौन सा एंगल होगा DBE we consider. DBE. Yeah. Okay, DBE. Now if I happen to go for DBE is which angle? Angle I.
FEBs, which angle are they equal? Yes, sir. This is corresponding angles of congruent triangle. Did we prove I equal to R? Students, is this clear? Yes, sir. Yes, sir. So they might ask you to draw this and get the answer, and it can be asked for 4 marks. I mean, students, you have to go for the ratio. Chalo, agar maine pucha students, what is the ratio of incident to reflected wavefront? So now go for cos R. What is cos R, students? Cos R. Cos R will be equal to what, sir? Adjacent. Incident wavefront upon hypotenuse. Agreed? What is cos R? Adjacent. Reflected wavefront upon hypotenuse. Agreed? If I go for the ratio of cos I upon cos R, तो क्या मिल रहा है? Ratio of wavefront incident upon BE divided by, तो कहने से B ऊपर चला जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड आ गया. एग्री स्टूडेंट्स? कहने से ये कैंसिल हो जाएगा. क्या मिला मुझे? क्या मिला मुझे स्टूडेंट्स? सर रेशियो ऑफ cos R upon cos R is a ratio of incident wavefront to reflected wave. क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. यानी स्टूडेंट्स BF is your incident and DE is your, sorry, EF is your reflected. क्योंकि यहाँ पे मैंने एक semicircle ड्रॉ किया, tangent. I getting it? EF is your reflected wavefront. तो ये wavefront यहाँ पे जाके B रीचेस हो गई है. ध्यान से देखना, अभी B और ये है, जैसे ही नीचे टच होगा ये ऊपर आ जाएगा. तो BD तुम्हारा इंसिडेंट हो रहा है, EF तुम्हारा रिफ्लेक्टेड हो गया. So this is how the waveform will move. It's going to go in this manner. It hits as this tail comes over here, it starts rotating and then moves in the forward direction. क्या ये clear हुआ students? Is this clear to all of you all? You will Yes, get two sir. right angle triangles and try to separate the two right angle triangles properly to get your answer, but you have to prove this. Hope it's clear to all the students inside the group. Can I erase this part? Sir, 1 second. Yeah. कनेक्शन तुम जब भी डायग्राम करो ना, तो तुम यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन को ओवरकम करने के लिए तुम तुम्हारा इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड को ये परपेंडिकुलर से दूर रखो नॉर्मल से, तो यू विल गेट अ डायग्राम मच मोर बेटर. Done, sir. Now after this, students, you have your polarization part, which is not there in your scope, okay? But I'll just give you a mathematical relation for your refraction questions related to that. They might ask you certain MCQs, they might ask you problems based on the simple refraction. Okay, so please pay attention to this. Suppose in case if they give you questions, they might give you a refractive index of medium 2 with respect to medium 1. So the first medium will consider will be optically rarer, and the second medium will consider to be optically denser. इसके simple basic questions पूछ सकते हैं students. Please to take care of this. Your first formula will be it's sine of angle of incidence upon sine of angle of refraction. That is, we consider just Snell's law. Okay, which is also equal to velocity applied in the first medium to velocity applied in the second medium, students. Which is also equal to 1 upon refractive index of 1 with respect to 2. This is principle of reversibility of path of light. Which is also equal to refractive index of medium 2 to the refractive index of medium 1. अगर पहला medium नहीं दिया है तो इसको air या vacuum ले सकते हो.
ये सारे तुम्हारे मैथमेटिकल रिलेशन सारे एक ही ऑर्डर में आते हैं. Okay, that is also equal to what? Frequency remains constant, wavelength in air upon wavelength in the first medium to wavelength in the second. What does nu stand for? Frequency. Frequency is constant. देखो v is equal to nu into lambda. So frequency constant है. So I'm taking ratio of their wavelength, which is also equal to speed is also given as what? Distance covered in the first medium to the time taken. Distance covered in the second medium to the time taken. Time taken constant ले लिया मैंने. So d1 by d2. That means it's a distance covered by light in the first medium to the distance covered by light in the second medium in the same time. इसका यानी सिंपल एग्जांपल सुनो. एक रेक्टेंगुलर ग्लास में भैया मैंने बोला कि 5 सेकंड में लाइट रेज ट्रैवल कर रहा है एयर में, तो उसी टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा ग्लास में, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया. टाइम सेम है, तो तुम्हें पूछा क्या मैंने? d2 पूछा स्टूडेंट्स. तुम्हें d1 दूंगा मैं और न्यू मालूम है. आ गया ना तुम्हारा रिलेशन. Are you getting, students, what am I trying to give you? Yes, sir. Please, you can get problems of different types we consider, and so many mathematical relations put in one. Okay, further, if I happen to consider this refractive index is also equal to what? Is also equal to your real depth upon apparent depth, which is of learned in lower standards also. A coin appears to be raised when placed in water. I'm getting it, and seen from outside. Okay, a postal stamp appears to be raised, so that's what we call as real depth upon apparent depth we consider. It is also equal to 1 upon sine of which angle? Critical angle we consider. That's already you are aware about it, we consider. Is that clear? Now, since polarization is not there, otherwise I would have given you is equal to tan IP. लेकिन ये तुम्हारे मेंस में है, इसको तुम tan IP में भी लिख सकते हो. Polarizing angle, IP is polarizing angle. लेकिन अभी तुम्हारे लिए ये नहीं. तो स्टूडेंट्स तो सारे फॉर्मूलास मैंने एक लाइन में लिख दिए. Yani you can get a question between first and the last one, or I can get a question between this and last one. But all the time keep in mind, first is optically rarer, second is optically denser. You can get your relation in this manner. So refractive index of medium 2 with respect to medium 1, sine of angle of incidence in the first medium, sine and angle of refraction in the second medium, velocity of light in the first medium, velocity of light in the second medium. It's a reciprocal of refractive index of 1 with respect to 2, principle of reversibility of path of light, mu2 by mu1, frequency remaining constant, lambda 1 by lambda 2, time remaining constant, distance covered in the first medium to the distance covered in the second medium, real depth upon apparent depth, 1 upon sine of critical angle. This is also equal to tan of polarizing angle. Is this clear to all of you? Yes, sir. So that is tan of Polarizing angle. Polarization. Refractive index of denser to rarer is equal to tan of IP. Okay. yes, sir. Now we go for the next part, students. Okay. We go for your interference part of it. Can I erase this part, students? इसको erase कर दूं मैं? Yes, sir. Okay. So what exactly interference of? So interference of light we consider is when two or more light beams approach at a point simultaneously, students. Each will try to produce its own displacement independent of the other. Yani ye actually क्या मालूम है? Principle of superposition, students. See, one thing you must have learned, principle of superposition in mechanics also, principle of superposition in electric fields also. इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड में भी पढ़ा होगा, वेव मोशन में भी एसएच में भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा होगा. सेम थिंग यहाँ पे भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. द वर्ड इंटरफेरेंस का मतलब क्या? टू और मोर लाइट वेव्स अप्रोचिंग एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली. यानी ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, अगर सपोज मैंने कोई दो लाइट बीम्स, अगर सपोज ये एक पॉइंट है इन अ गिवन मीडियम, ओके, और मेरे हाथ में दो सोर्स है, एक S1 है और एक S2 है. ये दो सोर्स है, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स. और ये पूरा एक्सपेरिमेंट में डार्क रूम में कर रहा हूँ और मेरे सामने मैंने स्क्रीन रखा हुआ है. यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ पे लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है.
Okay, these are point source. The answer is point source of it. Okay. Now, if in case if I'm making a screen placed at a certain distance from the two sources and I select certain points, एक मैंने point P यहाँ पे लिया स्क्रीन पे, दूसरा मैं point O लेता हूँ जो exactly S1 और S2 का, ध्यान से सुनना, S1 और S2 का perpendicular bisector, agreed? और मैं यहाँ पे एक point लेता हूँ T, ये स्क्रीन है स्टूडेंट्स, ये स्क्रीन है। स्क्रीन पे मैंने क्या किया मालूम है, ध्यान से सुना, मैंने स्क्रीन के ऊपर एक फ्लोरोसेंट मटेरियल डाल दिया है स्टूडेंट्स, ओके। लेकिन वो फ्लोरोसेंट मटेरियल मैंने सिर्फ पॉइंट ओ पे रखा है, पी पे रखा, टी पे रखा है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? सारे में मैंने स्प्रेड नहीं किया, तीन ही पॉइंट पे रखा है और ये सोर्स मेरे सामने। इंटरफेरेंस का मतलब क्या है? अगर सपोज मैंने इसको नहीं लिया, ये सोर्स को मैंने नहीं लिया, तो होगा क्या सर, इसकी लाइट ही जाके गिरेगी। तो देखो ये वेवफॉर्म जाएगा, यहाँ पे स्ट्राइक होगा, इसकी लाइट यहाँ पे भी आ सकती है, क्यों नहीं, इसकी लाइट यहाँ पे भी आएगी। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? एग्रीड? एग्रीड स्टूडेंट्स? अगर मैंने S1 को नहीं लिया और S2 को लिया तो उसकी लाइट, हाँ सर उसकी लाइट भी आएगी, तो उसकी लाइट शायद इधर जाएगी, P पे भी जाएगी, उसकी लाइट O पे भी जाएगी, इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल ड्रॉप, उसकी लाइट P पे भी जाएगी। क्या ये क्लियर हुआ सबको? स्टूडेंट्स गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. ना सपोज मैंने दोनों सोर्स को मैंने ऑन कर दिया at the same time, and both these particular sources I'll call them as coherent sources. Coherent. और ये और इफेक्ट बेटर होगा अगर मैंने दोनों सोर्सेस मैंने लिए मोनोक्रोमैटिक इन नेचर। मोनोक्रोमैटिक दैट मींस सिंगल कलर एंड सिंगल, यानी ये जो ब्लू लिया है इसके जगह पे मैं ब्लैक लेता हूँ, मैं दूसरी लाइट नहीं लूंगा, मैं आई एम टेकिंग ब्लैक। एंड व्हाट एम आई ट्राइंग टू गो फॉर? सर यू आर ट्राइंग टू गो फॉर सेम लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी एंड सिंगल वेवलेंथ। कोहेरेंट का मतलब क्या? यहाँ पे जो, ध्यान से सुना, यहाँ पे जो वेव फॉर्म आता है, यहाँ पे जो वेव फॉर्म आता है इन टाइम t, एग्जैक्टली इन सेम टाइम यहाँ पे भी जो वेव फॉर्म आएगा, इनका फेज डिफरेंस, या तो जीरो होगा या तो कांस्टेंट रहेगा, या तो जीरो होगा या तो कांस्टेंट रहेगा। दैट मींस they are in same state of oscillation, same state of vibration। यानी यहाँ पे अगर क्रेस्ट आया तो यहाँ पे भी क्रेस्ट आएगा, यहाँ पे ट्रफ आया तो यहाँ पे भी ट्रफ आएगा। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? गेटिंग इट? I've taken two sources, S1 and S2, both are point sources, but what kind of sources are there? तुरंत तुम्हारा आंसर होगा coherent source। अगर किसी ने पूछा coherent का मतलब क्या, coherent का मतलब क्या, दुर्गेश मैंने आंसर दे दिया था। coherent का मतलब क्या कि यहाँ पे S1 और S2 जो point sources है, the particles, the phase of that particular waveform, the phase of the waveform at S1 and S2 is either 0 or 2 pi remaining constant. That means they are in same state of oscillation. तीसरी बात, the light wave which are making it to travel from S1 and S2, are they of single color? Why not? They are of single color and single wavelength. अभी मुझे बताओ स्टूडेंट्स, तुम्हें S1 S2, ध्यान से सुनना, एक ही लाइट के कैसे मिलेंगे? सर तुम बोलोगे सर ऐसा करते ना, यहाँ पे एक ब्लू बल्ब रखो, हेलो, यहाँ पे एक बल्ब रखो जिसका ब्लू लाइट है, वहां यहाँ पे भी एक ब्लू लाइट की बल्ब रखो, दोनों का कलर सेम हो गया। या लेकिन उसमें भी तुम्हें तो कुछ फर्क गिरेगा क्योंकि दोनों अलग अलग है, दो ब्लू लाइट है लेकिन दे आर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। हमेशा तुम्हें जब भी सिंगल फ्रीक्वेंसी, सिंगल वेवलेंथ और कोहेरेंट चाहिए ना स्टूडेंट्स, ऑलवेज ट्राई टू गो फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। तो तुम क्या करो मालूम है, एक बल्ब यहाँ पे रखो, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, कीप अ बल्ब हो भैया, ओके। उस बल्ब के सामने एक छोटा सा पिनोल करो, बॉक्स के अंदर रख दो, यहाँ से ये जो S1 और S2 है स्टूडेंट्स, S1 और S2 है, वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रखो। ये देखो, कहने से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आ गया, यानी in time t, since the medium is same, in time t, what is the speed of the light wave over here? Sir, constant. Speed of light wave over here also is constant. What is the distance covered? So speed is equal to distance upon time. So distance is equal to what? Speed into time. So can I say the distance covered by the wave from my source to S1
and distance covered from source to S2, will it be exactly the same? Yes, sir, exactly the same. That means the two waveforms, when they reach over here, will they reach in same phase? Yes, sir, they'll reach in same phase because both these points are equidistant from a given point. And since you have done SHM, the oscillation, तुमने पढ़ा होगा, difference in phase upon 2 pi is equal to difference in path upon lambda, difference in time interval upon capital P. क्या ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा है स्टूडेंट्स SHM में? Is this done with you all? Two particles which are in same state of oscillation are in same phase. What is the phase difference? Either 0 or 2 pi. अभी देखो ये फॉर्मूला मैं ले रहा हूँ. ये क्या है? Change in phase. Delta phi. 2 pi is a constant. Change in path, delta x, lambda correspondingly given constant. Change in time interval, motion is periodic. अगर सपोज मैंने ध्यान से सुना, अगर मैंने फेस डिफरेंस 0 लिया, स्टूडेंट्स फेस डिफरेंस 0 लिया तो डाल दो 0 ना, डाल दो 0. पाथ डिफरेंस क्या मिलेगा तुम्हें? 0 upon 2 pi into lambda. 0. There is no change in path. That means the distance covered from S to S1. Students, distance covered from S to S1 and S to S2 is exactly the same. So what is difference in path? SS1 minus SS2 will be 0. Is this clear? Yes, sir. Are you all understanding, students? क्या ये mathematical relation तुम लोगों ने clear किया है, students? हाँ, students? Tanya says yes. तो अगर ये क्या होगा तो तुम्हारा पूरा भी पार्ट बहुत अच्छी तरह से आएगा. You'll be able to crack it more easily. Okay. So what are we trying to understand, students? We are trying to understand interference. अभी ध्यान से देखना. Interference का मतलब क्या है? तो मैंने S1, S2 दो कोहेरेंट सोर्स लिए. ये वर्चुअल सोर्स है. मेन सोर्स तो मेरा रियल सोर्स मेरा ये है. यहाँ से मुझे ये दो सोर्सेस मिले. ये वर्चुअल है लेकिन कोहेरेंट है. लाइट जो यहाँ से आ रही है वो मोनोक्रोमैटिक है. सिंगल वेवलेंथ सिंगल फ्रीक्वेंसी. यानी यहाँ से इनका फेज डिफरेंस 0 भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है. नाउ आई हैव टेकन 3 पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन. मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, when light beam reaches from S1 to P and S2 to P, are they in same path? Do they have the same distance covered? हाँ स्टूडेंट्स, अगर मैं पॉइंट P यहाँ पे लेता हूँ तो क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है? हाँ स्टूडेंट्स बताओ. No, sir. यानी कहने से ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर रहा है. कैसे? ड्रॉप ऑफ परपेंडिकुलर ना. हेलो, ड्रॉप ऑफ परपेंडिकुलर. तो ये ड्रॉपिंग द परपेंडिकुलर क्या होगा मालूम है? When light wave reaches from S to a particular point and ये यहाँ से लाइट शुरू होगी. स्टूडेंट्स ये हुआ तुम्हारा वेव फ्रंट. परपेंडिकुलर drawn to it is called as wave normal. तो देयर इज डिफरेंस इन पाथ. ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है ना, इसको हम बोलते हैं डेल्टा एक्स. क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. ये है तुम्हारा पाथ डिफरेंस. डिफरेंस इन पाथ बिटवीन द टू सोर्स. तो क्या इनका पाथ डिफरेंस होगा? हाँ सर, पाथ डिफरेंस है. यानी दोनों वेव यहाँ पे पॉइंट पी पे मिल रहे हैं तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस है. तो क्या मुझे ये पॉइंट पी, जब ये दो लाइट वेव्स यहाँ पे आएंगे तो क्या ये मुझे ब्राइट मिलेगा? सर नहीं पता. क्या मुझे डार्क मिलेगा? सर नहीं पता. लेकिन दोनों में से कोई एक तो होगा. यस, या तो ब्राइट होगा या तो डार्क होगा. लेकिन कंफर्म हम कैसे बताएंगे? इफ यू नो द पाथ डिफरेंस प्रॉपर्ली देन. बट देयर इज डिफरेंस इन पाथ. व्हाट इज हैपनिंग दिस टू वेव्स? सो द टू वेव्स आर अप्रोचिंग एट अ पॉइंट P साइमल्टेनियसली इन अ गिवन मीडियम. अगर दोनों का क्रेस्ट साथ में आता है, ये वेव का क्रेस्ट A1 है, ये वेव का क्रेस्ट A2 है, दोनों का एम्पलीट्यूड एक साथ में आएगा तो व्हाट हैपेंस? द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी मोर. ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा. अगर एक का ट्रफ आता है, दूसरे का भी ट्रफ आता है तो रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम, लेकिन ऑन द नेगेटिव साइड. लेकिन अगर एक का क्रेस्ट आया, दूसरे का ट्रफ आया तो व्हाट एग्जैक्टली माय रिजल्टेंट विल बी? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी 0. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. प्लीज स्टूडेंट्स,
ये जो वेव फॉर्म है, दे आर लाइट वेव स्टूडेंट्स, एंड लाइट वेव्स आर इन फॉर्म ऑफ alternate crescent trough. Light waves are in form of alternate crescent trough students. Is that clear? So now when I say they are an alternate crescent trough, we can say that these light waves, if they are reaching at a particular point in same phase, either at positive extreme or negative extreme, this is going to give me a constructive interference. यहाँ पे तुम्हारा लाइट का इंटेंसिटी ब्राइट होगा, लेकिन अगर एक वेव का क्रेस्ट आया, दूसरे का ट्रफ आ गया, तो तुम्हारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा. रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 हुआ, व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट? सर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. पढ़ा है तुम लोगों ने? कहाँ पे पढ़ा है तुम लोगों ने? रेडिएशन में पढ़ा है. ब्लैक बॉडी रेडिएशन, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. व्हाट इज इंटेंसिटी? dq by dt upon a. Energy radiated per unit area per unit time. Watt meter square inverse intensity है. It's directly proportional to square of amplitude. अगर एम्पलीट्यूड 0 होगा तो इंटेंसिटी 0 होगा, लाइट विल बी डार्क. यानी पता चला स्टूडेंट्स, इंटरफेरेंस का मतलब क्या? इंटरफेरेंस का मतलब टू और मोर लाइट वेव्स अप्रोचिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, at a particular point, and at that particular point, if the two waves meet in phase, that is, if the phase difference is either 0 or 2 pi, that will give me constructive interference. You'll get a bright point. But if the two waves meet at that point, and if they are out of phase, what exactly the resultant intensity will be? 0. It will be a dark point. तो bright और dark किसके ऊपर डिपेंड होता है? Depending on the interference part of it. और यहाँ पे तुम्हें P ब्राइट या डार्क भी मिल सकता है. वैसे T भी क्या हो सकता है? सर यहाँ पे भी तो पाथ अलग है ना. ये देखो, ये डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस कम है, तो सर T का भी हम कुछ गारंटी नहीं बोल सकते हैं. शायद वो ब्राइट भी होगा या डार्क भी होगा. लेकिन स्टूडेंट्स, O के बारे में क्या बोलोगे? O के बारे में क्या बोलोगे? तो तुम बोलोगे सर O तो आपने एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लिया, यानी सर यहाँ से जो वेव फॉर्म आएगा और यहाँ से वेव फॉर्म आएगा, दोनों का डिस्टेंस सेम है. अगर दोनों का डिस्टेंस सेम है तो उनका पाथ डिफरेंस तो 0 हो जाएगा. अगर पाथ डिफरेंस 0 हो गया, डाल दो यहाँ पे 0, तो फेज डिफरेंस क्या होगा? 0. एंड फेज डिफरेंस 0 होगा तो वो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. यानी स्टूडेंट्स, एट पॉइंट O हमेशा तुम्हें ब्राइट पॉइंट ही मिलेगा. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Students, are you getting it? See, initially the strength was, how many students were there? There were 13, 14 students, and now it has been dropped to just 7. 50% of the class has gone. And then they say they want the lectures. For what reason? Sneha, Shwetal, are you getting it? Bhavna, are you getting it? Aishwarya, are you getting it? Shravani, Shania, and Durgesh. And one more was there, na? Aishwarya, you were present in the branch? Or Bhavna, you were present? No, sir. No, sir. Okay. इसमें ये ध्यान में रखना, इंटरफेरेंस में पॉइंट पी ब्राइट भी हो सकते हैं, डार्क भी हो सकते हैं, लेकिन सेंट्रल में हमेशा कंस्ट्रक्टिव होगा, ये हमेशा ब्राइट होगा. Are you getting it? So interference के मतलब when two or more light waves meet at a point simultaneously, each wave will try to produce its own intensity independent of the other. Resultant intensity अगर निकालना है तो मैं वापस में फॉर्मूला दे रहा हूँ, वो यहाँ पे यूज हो सकता है. Resultant intensity students, it's I1 plus I2 plus 2 under root I1 I2 into change in phase cos of P. Okay, question bank is also given Bhavna. Doesn't matter. So in that case, you'll be able to tackle these kind of questions if you go to the question bank. So I1 I2 plus 2 under root I1 I2 cos of P, तुम्हारा resultant intensity होगा. अभी देखो यहाँ पे दोनों जो लाइट आ रही है, क्या आ रही है? सर दे आर इन सेम फेज, यानी दोनों का इंटेंसिटी सेम होगा. क्यों इंटेंसिटी सेम होगा? दोनों का इंटेंसिटी सेम, क्योंकि फ्रॉम सेम सोर्स हम ले रहे हैं. सोर्स वही है, सोर्स एक ही है,
ये मेरे को वर्चुअल सोर्सेज मिला है, तो ये सेम फेज नहीं है, तो इंटेंसिटी यहाँ से इंटेंसिटी यहाँ से सेम होगी, तभी जाके मुझे या तो ब्राइट मिलेगा या तो डार्क मिलेगा। ब्राइट कभी मिलेगा अगर इस लाइट वेव का क्रेस्ट और दूसरा लाइट वेव का क्रेस्ट, दोनों का क्रेस्ट एक टाइम पे पहुंचते हैं वहां पे, तो ब्राइट होगा, या दोनों का ट्रफ एक टाइम पे पहुंचेंगे तो ब्राइट होगा। लेकिन एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखो ये क्या है इन फेज, इसका फेज डिफरेंस जीरो होगा या 2 पाई होगा, लेकिन इसका देखो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये है पाई/2, ये होगा 3 पाई/2। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, पाई/2 3 पाई/2। Can you tell me what is the phase difference, students? 3 पाई/2 minus पाई/2 है ना? What's the answer? What's the answer? Pi. Agreed? अगर एक का क्रैश और दूसरे का ट्रफ आया तो इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा? पाई होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट्स? हाँ या ना? Light beam coming from one source and the other source, are they out of phase? Yes. Phase difference is pi. If phase difference is pi, can I substitute over here pi? Are the two light waves from same source? Yes. Intensity same, 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 same. तो फॉर्मूला क्या होगा? फिर I plus I 2I होगा, प्लस ये भी 2I होगा, ये cos of 180, what is cos of 180? -1, डाल दो माइनस, अरे सर ये तो जीरो आ गया, इंटेंसिटी जीरो, पॉइंट विल बी डार्क, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये बनाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ये दो बनाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में तुम्हें ब्राइट पॉइंट मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में तुम्हें डार्क पॉइंट मिलेगा। लेकिन जब भी तुम सेंटर पकड़ते हो स्क्रीन का तो वहां पे हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि पाथ डिफरेंस इज जीरो। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? क्या मैं इसको एरेज कर सकता हूँ अभी? हाँ स्टूडेंट्स, कैन आई एरेज दिस नाउ? Yes, sir. Okay. Hope you all are understanding, students. Hope you all are understanding. Okay. Now to make it more easier, students, I'll try to give you in this manner. Listen carefully. Over here, I'll give you the formula delta P upon 2 pi is equal to delta X upon lambda delta T upon capital T. यहाँ पे मैं लिखता हूँ phase difference correspondingly path difference. Okay. यहाँ पे हमें पता चलेगा क्या वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ये तो मैं हेल्प करेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, ये एक सोर्स से लाइट बीम आ रहा है S1, दूसरे सोर्स से लाइट बीम आ रही है S2, दोनों का इंटेंसिटी सेम है, I1 इज इक्वल टू I2 जो मैं I लूंगा। अगर किसी ने पूछा भाई क्यों है इंटेंसिटी सेम, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? सर ये दोनों जो है ना S1 S2 एक ही सोर्स से पैदा किए गए हैं। दूसरी बात, दे आर इन सेम फेज, यानी वर्ड होगा कोहेरेंट। दूसरी बात, आर दे मोनोक्रोमैटिक? यस। आर दे सिंगल फ्रीक्वेंसी? यस। इंटेंसिटी सेम होगा। क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes, हाँ sir. स्टूडेंट, अभी देखो, अभी हम एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लिखते हैं स्टूडेंट्स। ये एम्पलीट्यूड का रिलेशन कहाँ से है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टूडेंट्स। जैसे तुम बोलोगे ना, व्हाट एग्जैक्टली रिजल्टेंट if two vectors if I happen to consider are headed in the same direction or opposite direction at an angle theta, so how do you go for under root a square plus b square plus 2ab? सेम थिंग यहाँ पे भी, रिजल्ट एंड एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos of t, ये तुम्हारा रिजल्ट एंड एम्पलीट्यूड, और ये होगा क्या? अंडर रूट। स्क्वायर करोगे तो मिल जाएगा। हाउ इज इंटेंसिटी? How is intensity, students? Directly proportional to square of amplitude. ये तुम्हारे ध्यान में रखना है।
अगर यही फॉर्मूला मुझे इंटेंसिटी, देखो इसका फॉर्मूला लिखता हूँ, therefore exactly रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होल स्क्वायर जब मैं करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड से रूट चला जाएगा, तो ये क्या होगा, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos phi। phi का मतलब क्या है, चेंज इन फेज। क्या ये दो फॉर्मूलास क्लियर हुए स्टूडेंट्स? ये दो फॉर्मूलास क्लियर हुआ है। दो वेव दोनों का एम्पलीट्यूड अगर अलग अलग है तो तुम्हारा ये फॉर्मूला आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर इंटेंसिटी सेम है तो दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है, तो तुम्हारा ये फॉर्मूला आएगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए। अगर मुझे इंटेंसिटी का फॉर्मूला चाहिए तो कैसे निकालोगे सर? इंटेंसिटी रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा सर? इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो अगर ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा। ये a1 स्क्वायर है तो सर ये i1 होगा, क्योंकि i1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a1 स्क्वायर, i2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a2 स्क्वायर, प्लस ये a1 a2 है तो यहाँ पे 2 अंडर रूट i1 i2 cos। क्या ये क्लियर हुआ सबको? इससे तुम्हें पता चलेगा कंस्ट्रक्टिव है डिस्ट्रक्टिव। क्लियर हुआ स्टूडेंट साहब? Yes, sir. अभी हम लेते हैं, ध्यान से सुनना, अभी ध्यान से सुनना, अभी हम लेते हैं फेज डिफरेंस। स्टूडेंट्स यू टेल मी, दो वेव यहाँ पे पहुंच रहे, ध्यान से सुनो, दो वेव यहाँ पे पहुंच रहे एट अ पॉइंट पी। अगर तुम बोलोगे सर इनका फेज डिफरेंस, ध्यान से सुनना, इनका फेज डिफरेंस हम पाई लेते हैं या 2 पाई लेते हैं, एग्रीड? या पाई बाय 2 लेता हूं मैं, कोई भी प्रॉब्लम, पाई बाय 2 ले लो तुम, या इफ आई हैपन टू कंसीडर इज 3 पाई बाय 2 या पाई बाय 4। देखो सबका मैंने फेज डिफरेंस लिया है, डेल्टा फी लिया है, दो वेव वहां पे मिल रहे हैं और दोनों का मैंने फेज डिफरेंस दिया है, जिसका पाई रेडियंस हो सकता है या 2 पाई रेडियंस हो सकता है, पाई बाय 2 रेडियंस हो सकता है, 3 पाई बाय 2 रेडियंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस क्या मिलेगा मुझे? कैन आई फाइंड आउट दैट? अरे हाँ सर, फॉर्मूला है ना आपके सामने, देखो डेल्टा एक्स, व्हाट इज डेल्टा एक्स? डेल्टा फी इनटू लैम्डा अपॉन 2 पाई। अभी चलो पहले वाला निकालते हैं, व्हाट इज डेल्टा एक्स? सर चेंज इन फेस इज पाई into lambda upon 2 pi. Pi pi will get cancelled. So my answer is lambda by 2. यानी अगर दो वेव्स पॉइंट P पे मिलते हैं, अगर उनके बीच में फेज डिफरेंस पाई है तो उनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा बाई 2। क्या ये क्लियर हुआ तुम लोगों को कैसे निकालते हैं पाथ डिफरेंस? हाँ या ना? Yes, sir. I feel like that, mama. I feel like crying, mama, mama, mama. देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, सानिया कितनी बदल गई है। स्टूडेंट्स आई एम गेटिंग इट। हाँ अभी मैं 2 पाई लेता हूँ, चलो फेज डिफरेंस 2 पाई लेता हूँ, तो देखो डेल्टा एक्स क्या होगा, 2 पाई डाल दो into lambda upon 2 pi, 2 pi to 2 pi. What's the part difference? Lambda. If I take pi by 2, can I get my phase difference? Yes. 3 pi, suppose if I take pi by 4, चलो pi by 4 लेता हूँ मैं, pi by 4 into lambda upon 2 pi, pi by again lambda by 8, lambda by 8. यहाँ पे तुम्हें इंटरफेरेंस में ध्यान से सुनना, मुझे एक प्रॉपर डार्क एंड प्रॉपर ब्राइट चाहिए। एवरीबॉडी नाउ बी विथ मी। प्रॉपर ब्राइट और प्रॉपर डार्क वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? किसके ऊपर डिपेंड होगा सर? वो डिपेंड होगा फेज डिफरेंस के ऊपर। देखो और ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया। क्या दोनों वेव फॉर्म की इंटेंसिटी सेम है? यस। विधान से सुनो, दोनों की इंटेंसिटी सेम है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये देखो ये 2i होगा। एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, I1 is equal to I2 is equal to I am taking it, तो ये 2i हो जाएगा। ये क्या होगा? 2i cos p। So can I use the same formula over here? देखो अभी इसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालते हैं। पहले केस के लिए ये तो 2i आएगा, यस। ये भी 2i आया, यस। What is the phase difference? Cos of 180. So what is cos of 180? -1. तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा सर? प्लस 2i माइनस 2i। व्हाट इज माय रिजल्ट इंटेंसिटी? 0। रिजल्ट इंटेंसिटी क्या होगा? 0। एंड इंटेंसिटी इज व्हाट? एनर्जी इंसिडेंट
पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलरली। जब इंटेंसिटी 0 है तो हमेशा यहाँ पे जो पॉइंट फॉर्म होगा, दो वेव फॉर्म जहाँ पे, वो कौन सा होगा, ये डार्क ही होगा। हमें सिर्फ डार्क और ब्राइट के लिए चाहिए, इसलिए हमें पाई और 2 पाई को देखना जरूरी है। यहाँ फेज डिफरेंस 0 को देखने की जरूरत है, बाकी सारों को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंटेंसिटी होगी, यहाँ पे भी कुछ इंटेंसिटी होगी, पूरा ब्राइट नहीं होगा। अभी देखो, अभी 2 पाई लेते हैं, लेट अस टेक 2 पाई। चलो इसका फॉर्मूला लेते हैं, व्हाट इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी? फॉर्मूला क्या है? 2i प्लस 2i, व्हाट इज दिस? cos of 2 pi. Cos of 2 pi. So what is cos of 2 pi? What is cos of 2 pi? Plus 1 or minus 1? Hello? What is cos of 2 pi? Students, what is cos of 2 pi? Of course, plus 1. तो क्या आया मेरा आंसर? 4 times. Is my resultant intensity 4 times the original? तो क्या होगा? पॉइंट क्या होगा? सर पॉइंट तो ब्राइट हो जाएगा। अरे हाँ, ये तो ब्राइट मिल रहा है, ये डार्क मिल रहा है। अगर मैं फेज डिफरेंस 0 लेता हूँ, देखो फेज डिफरेंस 0 लेता हूँ, तो वापस रिजल्टेंट इंटेंसिटी फॉर्मूला वही होगा, 2i plus 2i cos of 0. Students, what is cos of 0? What is cos of 0? 1. अभी भी मेरा आंसर क्या होगा? 4 है। ये भी क्या होगा सर? ये भी तो ब्राइट होगा। यानी ब्राइट के लिए मुझे फेज डिफरेंस क्या चाहिए? 0 या इवन पाई, 0 या इवन पाई। ये क्या होगा? अगर मैं पाई लेता हूं तो व्हाट्स माय आंसर? देखो मैं पाई बाय 2 लेता हूं, फ्रेंड्स पाई बाय 2। चलो हम इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट व्हाट्स माय फॉर्मूला? 2i plus 2i plus cos of pi by 2. Students, what is cos of 90? What is cos of 90? 0. 0 into 2i क्या बन जाएगा? 0. बचा क्या? 2i. यानी कुछ इंटेंसिटी है कि नहीं है? कुछ लाइट होगी कि नहीं होगी? हाँ कि ना? हाँ सर. लेकिन कंपैरेटिवली अगर तुम ऊपर वाले को देखोगे तो 4i, ये 2i है, तो 4i ज्यादा ब्राइट होगा या 2i ज्यादा ब्राइट होगा? 4i. हमें क्या पढ़ना है? हम इंटरफेरेंस के अंदर हम क्या पढ़ना चाहते हैं? ब्राइट पॉइंट और डार्क पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, जब ब्राइट और डार्क में बात करनी है तो हमें ऐसे वाले फेज डिफरेंस को लेने की जरूरत ही नहीं होती, ऐसे वाले फेज डिफरेंस की जरूरत ही नहीं होती, ऐसे वाले फेज डिफरेंस, क्योंकि ये तो कुछ इंटेंसिटी देंगे। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट देम, आई डोंट वांट टू कंसीडर दैट। मेरा कंसेप्ट ये होना चाहिए कि इंटरफेरेंस के अंदर क्या होना चाहिए? या तो मुझे पूरा ब्राइट पॉइंट होना चाहिए स्क्रीन में, या तो पूरा मुझे डार्क पॉइंट होना चाहिए। एंड दोज आर कॉल्ड एज फ्रिंज पैटर्न। When you see the screen, students, by having a look at the micrometer eyepiece, you'll get fringes, and those fringes are very thin, fine lines. White, dark, white, dark, white, dark. If you happen to see certain videos of interference, तो तुम्हें पता चलेगा कैसे दिखता है वो पैटर्न। यानी या तो complete bright होगा या तो no light at all in that case. That is what we call interference. So interference of light is when two or more light beams approach at a point simultaneously, each will try to produce its own intensity independent of the other. The resultant intensity can be found out by vector sum, and we can use your parallelogram law of vector addition. ये होगा तुम्हारा फॉर्मूला रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, ये होगा तुम्हारा फॉर्मूला रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का। नाउ दोनों इंटेंसिटी सेम तभी होगा जब भी सोर्स कोहेरेंट है, फ्रॉम सेम सोर्स, दोनों वेवलेंथ का सेम है और मोनोक्रोमैटिक होगा, तो दैट्स व्हाट वी कंसीडर इंटेंसिटी सेम होगी। अगर इंटेंसिटी सेम होगी तो मुझे ब्राइट लाइट का इंटेंसिटी क्या होगा? 4 टाइम्स आई होगा। डार्क के लिए क्या हो जाएगा? 0 होगा। इन बिटवीन पाथ डिफरेंस होगा तो क्या होगा? फेज डिफरेंस होगा, तो आई विल गेट सम लाइट, लेकिन आई डोंट वांट दैट बिकॉज़ आई नीड टू गो फॉर ब्राइट एंड डार्क। अभी ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स दिस पार्ट? Yes sir. क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूँ? Sir, एक सेकंड. Shravani, getting it? Yes, sir. Are you sure?
What about you, Sania? Yes, sir. Okay. Sir, done. When I asked Shavani, are you sure? She didn't reply. Yani she's just thinking, चलो देख लेते कैसा होगा पता नहीं. ये सारी चीजें it has to be done very properly in that case. और उसके लिए तुम्हारा SHM होना जरूरी है. तुम SHM में सब कुछ पढ़ोगे, ये सब कुछ SHM में आएगा स्टूडेंट्स. ओके श्रावणी, आई डिडंट हियर इट. ये सब तुम SHM में पढ़ोगे स्टूडेंट्स. ये देखो सर, ये सारे फॉर्मूलाज देंगे तुम्हें बाद में, देख लेना. लेकिन वो साउंड में चला जाएगा स्टूडेंट, वो मैकेनिकल वेव्स के लिए चला जाएगा. क्योंकि इसके बाद में सॉरी आई डिडंट सी चांस. वो जो सर पढ़ाएंगे ना तो वो साउंड में चला जाएगा. ये हम लाइट में पढ़ रहे हैं बस. तभी जाके स्टूडेंट जब भी सर करेंगे ना SHM करने के बाद में तुरंत वो यहाँ पे आएंगे, वेव ऑप्टिक्स और फिर रे ऑप्टिक्स. It goes in parallel, all these things goes together. Okay students, now let us students understand कि कभी हमें destructive और कभी हमें constructive interference मिलेगा. We are trying to get an expression for path difference. Okay, so this is a short derivation. Expression for delta x, जिसको हम बोलते हैं path difference. Okay, expression for path difference for constructive and destructive. Okay, general formula हम derive करने वाले कि कभी हमें destructive मिलेगा, कभी हमें constructive मिलेगा. तो वापस हम डायग्राम जाते हैं. ये तुम्हारा ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा सोर्स S है. ओके, ये तुम्हारा मेन सोर्स है. सोर्स S से हमने क्या किया है सर, हमने दो सोर्सेस ढूंढे हैं. एक होगा S1 और दूसरा होगा S2. ये कौन से है? S1 and S2 are virtual coherent source. ये तुम्हारा रियल पॉइंट सोर्स है. एग्रीड. अभी यहाँ से तुम्हारा लाइट आ रही है, यहाँ से आ रही है और यहाँ से आ रही है. Agreed, I can consider this manner. Now, if I happen to consider a perpendicular bisector, ये तुम्हारा स्क्रीन है. Okay, ये पॉइंट O है. यहाँ से जो लाइट बीम एट अ पॉइंट P आ रही है, I'm going to draw straight line. और यहाँ से जो लाइट बीम जा रही है, it's reaching at point B. तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है at point P? At point P, there is a fringe. Fringe pattern is obtained. अभी ये फ्रिंज जो है क्या डार्क है या ब्राइट है वो हमें नहीं पता. What is the distance of this fringe from? ये हमेशा क्या होगा, ये होगा तुम्हारा सेंट्रल. हमेशा ये तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ही होगा. स्टूडेंट्स, ये हमेशा क्या होगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगा कि नहीं होगा? हाँ, क्योंकि इसका पाथ डिफरेंस 0 है ना स्टूडेंट्स? हाँ कि ना? S1O is equal to S2O. Therefore, change in path at point O will be equal to S1O minus S2O will be equal to 0. अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो फेज डिफरेंस 0 होगा. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस ही होगा. क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Now let us understand the derivation part of it. Suppose if I happen to construct a perpendicular from the given source onto the screen and I'll take two such points M and N. Let us say that the distance of this particular point P from the central right fringe be y. It's along y-axis. The distance between two virtual sources को मैं लेता हूँ d, small d. And the distance of this virtual sources from the screen is capital D. The capital D is a distance which is around 1 meter you can consider. So can I say ये इससे congruent होगा, ये इससे congruent है, सारे D होंगे. Agreed? तो अगर ये y है, ये d है, तो can I say this is d by 2, this is also d by 2. So now if I ask you students, what is PM? What is PM? What is length PM? Length PM क्या होगा? ये जो length PM होगा वो क्या होगा? So this is y minus d by 2. What is length PM? Y plus d by 2. क्या ये clear हुआ students? Students, have you understood the geometry? Yes.
ये है d/2, ये है d/2, ये y है, तो इसमें से d/2 निकालोगे तो pm कितना होगा, y माइनस d/2। ये है पूरा y, ये d/2 है, तो अगर मैंने पूछा पॉइंट p इसकी दूरी पे कितना है, तो y प्लस d। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Now let us understand. We are trying to go for expression for path difference. मुझे बताओ path difference का मतलब क्या स्टूडेंट्स? तुम बोलोगे सर path difference का मतलब, path difference का मतलब डेल्टा x, और यहाँ पे आप देखोगे तो हाँ सर S2P is greater than S1P, है ना? तो यहाँ पे जो डिफरेंस इन पास है सर, आपको फाइंड आउट करना है फॉर्मूला S2P माइनस S1P का फॉर्मूला फाइंड। इससे हमें पता चलेगा कि क्या वो कंस्ट्रक्टिव है डिस्ट्रक्टिव है। तो लेट अस फाइंड आउट दैट। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम दो राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं सिंपल। अब ये जो डेरिवेशन है बहुत ही 10th का डेरिवेशन है, 10वीं का डेरिवेशन है, सिर्फ डायग्राम को समझना। यानी ये दो मेरे दोनों S1 S2 मेरे दोनों कोहेरेंट सोर्सेज है, वर्चुअल सोर्सेज है, मोनोक्रोमैटिक इन नेचर वी कैन कंसीडर, इसको हम मोनोक्रोमैटिक भी ले सकते हैं। ओके, d/2 capital D is the distance between the source and the screen. Agreed? The distance of point P from the centrally bright fringe is y. Okay, now if I happen to go for two right angle triangles, so एक मेरा right angle triangle होगा PMS1, दूसरा मेरा right angle triangle होगा PNS2. Can I use theorem of Pythagoras over here? Yes. S1P the whole square is equal to PM square, which can I say y minus d/2 the whole square plus S1n, means can I say this becomes d square. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? Yes, sir. वैसे ही तुम दूसरा ट्रायंगल ले लो PS2n स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा सर, S2P the whole square is equal to Pn. What is Pn? What is Pn? Y plus d/2 the whole square plus d square। क्या ये क्लियर हुआ? हमें क्या चाहिए सर? आपको तो पार्ट डिफरेंस चाहिए, तो ये हुआ मेरा इक्वेशन नंबर 1, ये हुआ मेरा इक्वेशन नंबर 2। सर फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से सबट्रैक्ट कर दो, तो क्या होगा सर, S2P the whole square एंड S1P the whole square, उसमें से d स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। ये क्या होगा सर, y plus d/2 the whole square माइनस y minus d/2 the whole square। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? एग्रीड? ये तो कैंसिल हो जाएगा सबट्रैक्ट करूंगा तो। अरे हाँ या ना तो बोलो। Yes, sir. अभी अगर तुम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ले लो तो कैसे a माइनस b a प्लस b, है ना स्टूडेंट्स? इसका आंसर क्या होगा? y प्लस d/2 the whole square माइनस y माइनस d/2 the whole square, तो कहने से ये होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a प्लस b, तो एक d/2 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे 2y मिलेगा। a माइनस b, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, अब प्लस d/2 भी कंसिडर करेंगे, यानी इंटू 2, यानी d मिलेगा मुझे, ये आंसर मिलेगा मुझे 2/d। ये समझ में आया स्टूडेंट्स? इसको कैसे सॉल्व किया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b, इसको इससे ऐड करो तो d/2 कैंसिल होगा तो 2y आएगा, फिर माइनस करोगे तो माइनस y कैंसिल होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, d/2 प्लस d/2 इज d। क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. नाउ इफ आई हैव टू गो फॉर, मुझे क्या चाहिए सर? मुझे इसका फॉर्मूला चाहिए, मुझे इसका फॉर्मूला चाहिए, पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला चाहिए, पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला चाहिए। कैसे निकालोगे सर? आपके हाथ में आ गया अभी S2P माइनस S1P को सब्जेक्ट बनाओ ना, S2P माइनस S1P, तो ये क्या होगा 2y स्मॉल d अपॉन S2P प्लस S1P। एग्रीड? ये क्लियर हुआ? इसको मैंने नीचे ले लिया, ये तुम्हारा भी आंसर आ गया। अभी ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, whenever you perform experiment onto Young's double slit experiment, इसको हम बोलते हैं Young's double slit experiment, because it was put forward by Thomas Young. S1 and S2 are the two slits. इसको हम नाम लेते हैं YDX, Young's double slit. Thomas Young had put forward this concept. तो Young's double slit experiment के अंदर तुम देखोगे स्टूडेंट्स,
तो ये जो फ्रिंज पैटर्न तुम देखोगे ना, वो कैसे देखोगे मालूम है? ये पूरा ऑप्टिकल बेंच है, 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर या 150 सेंटीमीटर दूर पे होगा, and they'll give you a micrometer eyepiece. In the lab, one can see it, and when you perform the experiment into a dark room with a bright light at one end, you will see all fringes very, very close to each other. Students, fringe का thickness कितना होगा मालूम है? Less than millimeter. Millimeter का मतलब क्या? 10⁻³ मीटर. यानी सोचो स्टूडेंट्स, ये जो फ्रिंज पैटर्न हमें मिल रहा है वो इतना पतला होगा, तो कैन आई अज्यूम पॉइंट पी, ध्यान से सुनना, कैन आई अज्यूम पॉइंट पी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम पॉइंट एम, और पॉइंट पी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम पॉइंट एन, दे आर ऑलमोस्ट वन एंड द सेम पॉइंट. क्या ये क्लियर हुआ? Since fringe pattern is very thin, can I say my S2P will be nearly equal to S1P? My S1P and S2P will be nearly equal to what? Capital D. हाँ कि ना? Can I take that? ये तुम्हारा एक assumption आ गया. तो now अगर मैं यहाँ पे substitute कर दूँ, what exactly S2P minus S1P is equal to what? To y small d upon d plus d is 2d. D and d will get cancelled. So students, what exactly my path difference? Y small d upon capital D. क्या ये फॉर्मूला क्लियर हुआ? Is this clear with all of you? Yes. यानी स्टूडेंट्स, अगर तुम्हें किसी ने पूछा हाउ डू यू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर पाथ डिफरेंस फॉर टू सोर्सेस which is put forward by Young in a Young double-slit experiment, then the path difference is given by the formula y small d upon capital D. What does y stands for? Distance of the point from the centrally bright line. What does small d stands for? Distance between two virtual sources. What does capital D stands for? Distance between the screen and the source. जैसे तुम्हें पाथ डिफरेंस पता चला, अभी तुम पाथ डिफरेंस को देखते हुए, कैन यू टेल मी वेदर इट्स कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव तो कैसे पता चलेगा? बताओ कैसे पता चलेगा? सर अगर मेरा पाथ डिफरेंस 0 हुआ कंस्ट्रक्टिव, अगर मेरा पाथ डिफरेंस लैम्डा हुआ कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव के लिए हमें क्या मिला था पाथ डिफरेंस? कुछ याद आ रहा है? पाथ डिफरेंस याद आ रहा है तुम्हें? इसके आगे वाले ही बोर्ड वर्क में मैंने बताया था, एक तरफ फेस डिफरेंस लिखा था, एक तरफ पाथ डिफरेंस लिखा था, और वहां पे मुझे ब्राइट या डार्क मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. तो मुझे बताओ ये डार्क के लिए पाथ डिफरेंस क्या आ रहा था? कुछ याद आ रहा है? Sir, can you repeat? Can you tell me what is the path difference? Can you give me the path difference for destructive interference? Will it be, see, if I take path difference as 0 or path difference as lambda, okay, I'm getting constructive. But now what should be the path difference so that I should get destructive? Sir, lambda by 2. Lambda by 2. यानी lambda by 2. उसके बाद वाला क्या मिलेगा तुम्हें? यानी स्टूडेंट्स, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ द वेवलेंथ, 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 this is always destructive. But if it is 0, 1 pi, 2 pi, I getting it? 3 pi happens what exactly? Even integral multiple of half the wavelength. यानी अगर suppose मैंने दिया, okay, that is 2 lambda by 2, 4 lambda by 2, 6 lambda by 2, 8 lambda by 2, even. तो देखो, ये आया lambda, ये आया 2 lambda, ये आया 3 lambda, ये आया 4 lambda.
So if I'm taking 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda, what am I going to get it? Constructive interference. You have destructive interference. So can you give me a standard formula for constructive and standard formula for destructive? तो तुम बोलेगे सर पाथ डिफरेंस को यहाँ पे n लैम्डा लिखो ना, और यहाँ पे 2n minus 1 लैम्डा by 2. क्या ये क्लियर हुआ? फिर n stands for integer. अब देखो n को डाल दो 1, स्टूडेंट्स n को डाल दो 1, n को डाल दो 1, am I getting 1 लैम्डा? अरे हाँ सर. n को डाल दो 2, am I getting 2 लैम्डा? अरे हाँ सर. n को डाल दो 3, यानी n is 1 2 3 4, तो मुझे कंस्ट्रक्टिव मिलेगा. अभी n को 1 डालो स्टूडेंट्स, ध्यान से सुना, n को 1 डालो यहाँ पे, तो क्या आंसर आ रहा है? अरे सर 1 लैम्डा by 2 आ रहा है डिस्ट्रक्टिव. n को डाल दो 2, 2 2 जा 4, 4 minus 1, अरे हाँ सर डिस्ट्रक्टिव आएगा. n को डाल दो 3, 3 2 जा 6, अरे सर फाइन. यानी ये अगर तुम फॉर्मूला लेते हो तो तुम्हें डिस्ट्रक्टिव मिलेगा, ये फॉर्मूला लोगे तो कंस्ट्रक्टिव मिलेगा. तो स्टूडेंट्स तुम्हारा फॉर्मूला अभी क्या होगा? अभी फॉर्मूला क्या होगा? y small d upon capital D is equal to n times lambda for constructive, and y small d upon capital D is equal to 2n minus 1 lambda by 2 for destructive interference. क्या ये बात क्लियर हुआ सबको? Yes. See students, without this you can't proceed. तुम एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकोगे, एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकोगे. तो तुम्हें डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में तुम्हें पार्ट डिफरेंस मिल गया. तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स, यहाँ पे कौन सा पार्ट में इरेज कर सकता हूँ तो मेक यू अंडरस्टैंड स्टिल बेटर? क्या ये पाइथागोरस थ्योरम वाला मैं इरेज कर सकता हूँ? ये इजी है. एक छोटा ट्राइंगल और एक बड़ा ट्राइंगल ले लिया मैंने, पाइथागोरस थ्योरम लेके फिर दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, और वही डिफरेंस को मैंने यहाँ पे लगा S2 minus S1P, इसको नीचे ले लिया, लेकिन मैंने बोला फ्रिंजेस बहुत ही नजदीक होते हैं तो पॉइंट P इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम पॉइंट M. यानी मैंने क्या लिखा है, मैंने S2P is nearly equal to S1P, वहां पे D डाल दिया, 2 2 gets cancelled. तो ये मेरा फॉर्मूला है. क्या मैं ये पार्ट को सिर्फ इरेज कर सकता हूँ टू एलैबोरेट दिस पार्ट स्टिल बेटर? Yes. अभी तो आंसर लिखना. अभी एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, ध्यान से. Sir, we can say ना constructive के लिए even lambda by 2 और destructive के लिए और lambda by 2. हाँ नहीं, देखो देखो ये है सी बात है. ये तुम्हें कैसे याद रखना है तुम्हारे ऊपर है. देखो या तो स्टूडेंट्स याद रखेगा, याद सुनना, देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स विल ट्राई टू गो फॉर. एक स्टूडेंट उसको याद रखेगा ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ओके, एक स्टूडेंट याद रखेगा जहां पे n को तुम 1 लो 2 लो 3 लो, तो एक याद रखेगा n लैम्डा और दूसरा याद रखेगा 2n minus 1 लैम्डा बाई. ये क्या तुम्हारा डेल्टा x पार्ट डिफरेंस. पार्ट डिफरेंस समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यानी S2P minus S1P ये फॉर्म है. या दूसरा तुम क्या करोगे, इवन, मैं गेटिंग इट, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ द वेवलेंथ, तो तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव होगा. यहां पे और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ द वेवलेंथ. अब देखो इवन इंटीग्रल मल्टीपल एग्जांपल लेते चलो. अगर सपोज मैंने 2 लैम्डा बाय 2 लिया, 4 लैम्डा बाय 2 लिया, 6 लैम्डा बाय 2 लिया, 8 लैम्डा बाय 2 लिया, आ गया मेरा आंसर. ये क्या हुआ, लैम्डा आया. ये क्या हुआ, 2 लैम्डा आया. ये क्या हुआ, 3 लैम्डा आया. ये क्या हुआ, 4 लैम्डा आया. वो तो मुझे चाहिए था, ये तो ना लैम्डा 2 लैम्डा, दिस मैंने इवन इंटीग्रल ले लिया. और इंटीग्रल मल्टीपल में क्या होगा, 1 लैम्डा बाय 2, अरे हाँ सर 1 लैम्डा बाय 2 आ रहा है. 3 लैम्डा बाय 2, अरे हाँ सर और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ द वेवलेंथ. 5 लैम्डा बाय 2, अरे हाँ सर और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ द वेवलेंथ. 7 लैम्डा बाय 2, यस आई कैन गो फॉर दिस. उसी को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूला में ये लिख दिया. अभी समझ में आया स्टूडेंट हाउ टू प्रेजेंट दिस? Yes. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट सबको? Yes, sir. Yes, sir.
नाउ लिसन केयरफुली। अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है? Students, now give me पार्ट डिफरेंस। चलो कोई भी एक पार्ट डिफरेंस निकालो, उसका मैं फेस डिफरेंस निकालता हूँ और मैं फिर ब्राइट बताता हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? पार्ट डिफरेंस क्या चाहिए? n लैम्डा, n 1 2 3 है। व्हाट यू वांट टू टेक द वैल्यू ऑफ n? तो वी आर ट्राइंग टू प्रूव वेदर इट्स ब्राइट और डार्क। हाँ, और मैंने कंस्ट्रक्ट किया तो ब्राइट ही आएगा। n को क्या लेना है तुम्हें बताओ? व्हिच न्यूमेरिकल वैल्यू यू वांट टू टेक इट? कॉस्ट। सेम n आई विल बी टेकिंग इट ओवर हियर। फास्ट बोलो। सर 2 ले। ओके, नाउ सी, अगर मैं पार्ट डिफरेंस n को, अभी ध्यान से देखना, पार्ट डिफरेंस अगर मेरा 2 लैम्डा हुआ तो स्टूडेंट्स व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फेस डिफरेंस? तो डेल्टा फी अपॉन 2 पाई डेल्टा एक्स बाय लैम्डा। तो मेरा फेस डिफरेंस क्या हो जाएगा? सर डेल्टा एक्स तो आपने 2 लैम्डा लिखा है, ये 2 पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, लैम्डा तो नीचे है ही, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा डेल्टा फी हो जाएगा 4 पाई रेडियंस हो जाएगा। सर आपको प्रूफ करना है कि ये ब्राइट है या डार्क है। हाँ, वो बात तो सही है कि दोनों जो वेव फॉर्म्स यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से जो वेव फॉर्म्स आ रहे हैं वो सारे कोहेरेंट है, मोनोक्रोमैटिक है, वर्चुअल सोर्सेस है, यानी दोनों का इंटेंसिटी इज सेम, दोनों का इंटेंसिटी सेम ही है ना? यहाँ से जो बाहर आ रहा है, तो व्हाट इज माय फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी? तो I1 I2 की जगह पे क्या ना पुट 2I, यस, प्लस 200 I1 I2 की जगह क्या ना पुट 2I, यस। व्हाट इज द फेज डिफरेंस? Cos of 4 pi. Students, can you tell me what is cos of 4 pi? Students, what is cos of 4 pi? बताओ। 1 1. So can I say अगर cos of 4 pi we consider will be equal to 1, तो what exactly considers cos of 4 pi 1? तो ये क्या होगा? 2i plus 2i कितना होगा? 4i. Means can I say by resultant intensity is 4 times original? Is this going to be a constructive interference? Yes, and the point is going to be bright. क्या ये समझ में आया स्टूडेंट्स? यस सर। वही अगर मैं डार्क में जाता हूँ, सपोज अगर मैंने n को 2 ले लिया, ध्यान से देखना, n को 2 ले लिया तो मेरा पार्ट डिफरेंस क्या होगा? सर n को आप 2 ले रहे हो तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 1, यानी सर मेरा 3 लैम्डा बाई 2 आया। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? सर फेज डिफरेंस का फॉर्मूला तो डेल्टा एक्स, यानी 3 लैम्डा बाई 2, 2 पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा, 2 and 2 will get cancelled, लैम्डा लैम्डा आंसर, so मेरा आंसर तो 3 पाई आया। एग्रीड? Now if I want to go for resultant intensity, what is resultant intensity? So दोनों का इंटेंसिटी तो सेम है, तो पहला एक्सप्रेशन तो 2i आएगा, दूसरे का भी 2i आएगा। अभी पीछे क्या आएगा? cos of 3 pi. Students, what is cos of 3 pi? Odd pi. Plus 1 or minus 1? माइनस Minus 1. तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? 2i minus 2i. What is my resultant intensity? Is it 0? अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 होगा तो विल इट बी अ डार्क इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव? डिस्ट्रक्टिव। तो ये कौन सा पॉइंट होगा? डार्क होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट्स? समझ में आया सबको अभी? Yes, sir. यस सर। समझ में आया? इससे तुम्हें पता चलेगा कि कैसे तुम्हारा पैटर्न है। यानी एक जनरल फॉर्मूला कैसे ना, क्या क्या मैं इन दोनों को इरेज कर सकता हूँ? इन दोनों को इरेज कर सकता हूँ मैं, क्योंकि ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया था। कौन सा वाला? वापस यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये वेव मोशन में भी बहुत दफे यूज करेंगे शोम सर अगर कर रहे तो डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा, डेल्टा फी अपॉन 2 पाई, डेल्टा स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। तुरंत ये हमेशा दिमाग में रखना फॉर्मूला स्टूडेंट्स। जब भी कोई भी एमसीक्यू करते हो फेस डिफरेंस के हिसाब से, ये सामने तुम्हारे दिमाग में रखना, बहुत सारे एमसीक्यू तुरंत हो जाएंगे। Can I erase this too? यस अभी यहाँ पे रहेगा। अभी हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख लेते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए।
स्टूडेंट्स अगर मुझे एक जनरल फॉर्मूला बताना, ध्यान से सुनना, पाथ डिफरेंस, यानी ध्यान से सुनना, अगर पाथ डिफरेंस, अगर मेरा n लैम्डा is equal to y small d by capital T है, तो कैन आई से y n क्या होगा, n लैम्डा कैपिटल D by small d। स्टूडेंट्स ये किसका फॉर्मूला हुआ बताओ, ये किसका फॉर्मूला हुआ, y n किसका फॉर्मूला हुआ? तुरंत तुम बोलेंगे सर y is the distance, y is the distance of a fringe from center। ओ यानी सर ये अगर ब्राइट फ्रिंज होगा तो the distance of the bright fringe from the central bright fringe is always n lambda d by d। Clear हुआ? n stands for what? n can be 1 2 3 4। Suppose I can go for a fringe pattern, अगर मैं बोला 10 bright fringe, तो ये 10 लिखोगे, n is equal to 10 लिखोगे तुम, ये नंबर फ्रिंजेस आ जाएगा तुम्हारा। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? एग्रीड? यही चीज अभी डाक के लिए कैसे रखोगे, देखो वापस मैं लिख रहा हूँ, डेल्टा x, तुम्हारा डेल्टा x पाथ डिफरेंस is 2n minus 1 lambda by 2, and path difference is equal to what? So this is, which is equal to y small d by capital D. Can I put this as y n complement? So what is the formula for y n complement? 2n minus 1 lambda capital D upon 2d। ये किसके लिए होगा स्टूडेंट्स? ये होगा फॉर्मूला फॉर अ डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सपोज अगर मैंने बोला 10th डार्क फ्रिंज, तो n को क्या लोगे 10। तो ये किसका फॉर्मूला हुआ? डिस्टेंस ऑफ अ डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल। ये क्या हुआ? डिस्टेंस ऑफ अ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल। why was a distance? am I getting y as a subject in both the cases? yes। क्या ये क्लियर हुआ? ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। क्या ये फॉर्मूला क्लियर हुआ? डिस्टेंस ऑफ अ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल डिस्टेंस। अभी सपोज मैंने क्वेश्चन में दे दिया, ध्यान से सुना, आई हैव गिवन अ क्वेश्चन दैट इन YSD, इन YDS, ओके, इन YDS एक्सपेरिमेंट, ध्यान से सुना, क्या क्या बोल रहा हूं मैं प्रॉब्लम? इन YDS एक्सपेरिमेंट the distance between the source and the screen is 1 meter. Distance between the two virtual sources is 1 millimeter. The wavelength of corresponding monochromatic light is 5800 angstrom. Find the distance of 10th bright fringe from central bright fringe. तो मैंने वहां पूछा है 10th bright fringe, n को क्या डालो 10, लैम्डा कितना दिया है 5800 एंगस्ट्रॉम में दिया है, उसको कन्वर्ट करो मीटर में 10⁻10। कैपिटल डी कितना दिया है 1 मीटर दिया है, डी कितना दिया है 1 मिलीमीटर दिया है 10⁻3। कैन यू गेट द डिस्टेंस? हाँ या ना स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? If I ask you find the distance of the dark fringe from the central bright fringe, suppose if I say 15th dark fringe, 15, तो n को 15 डालो ना, 15 to the 30, 30 minus 1 29, 29 lambda d by 2d। lambda तो मैं मालूम है, d मालूम है, small d मालूम है। Can you find out the distance of that dark fringe from the center? Why not? Is this clear to all of you all? Yes, sir. Okay. Yes, sir. अगर मैंने पूछा, और ध्यान से सुनना, मैंने पूछा, ध्यान से सुनना, there is a bright fringe over here and there is a dark fringe over here. Find out the distance between. If I say, ध्यान से सुनना, 7th bright fringe on one side and 11th dark fringe on the other side, find the distance between them. तो क्या करोगे? कौन सा ब्राइट है? 7। क्या यहाँ पे 7 डालोगे? हाँ कि ना? एग्रीड? ये कौन सा है? 11 डार्क। कैन यू राइट 11 over here? 11 to the 22, 22 minus 1 21। I want distance between them. So will you subtract or will you add? Add them. Total distance ये ना, दोनों को ऐड करोगे तो कॉमन टर्म क्या होंगे? तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? बाहर आ जाएगा, बाकी सबको ऐड कर दो। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स कैसे प्रॉब्लम डेवलप होते हैं? Yes, हाँ या sir. ना? वही Yes, अगर sir. सेम साइड हुआ, वही अगर सेम साइड हुआ, वही अगर सेम साइड हुआ, सपोज अगर मैंने 11 डार्क यहाँ पे नहीं दिया, मैंने Q2 यहाँ पे दिया,
11 dark and 7 bright. Find out the distance between them. तो इसमें से इसको सबट्रैक्ट करो ना, लैम्डा डी बाई डी तो बाहर आ जाएगा, सिर्फ n को 11 डालना है तुम्हें. Are you clear with this? Yes, sir. Yes. Yes, sir. What is your concept related to your interference, students? Okay, so almost the interference part is done. It's only the last part, diffraction, is left. Okay, that's just one fourth of the topic. Whenever we get time, we'll try to go ahead with that. Is this clear? लेकिन इसके problems अगर होंगे तो please students solve करना. Okay? So tomorrow also your lecture is there. Tomorrow Yes, also sir. Yes, sir. 11 to 1. Sir, we'll do semiconductor at that time. So you can complete this and then move. Yes, But sir. then I think only 2 lectures are there, na? Tomorrow is the last lecture. Tomorrow, how can I take it? Tomorrow I have my own schedule. Sir, Nitesh sir sent a message on the group कि आपका 11 to 1 same timing कल भी है lecture. It's Yes, sir. It's not told to me. I'll speak to him. Okay? Okay, sir. चलो. Yes, sir. Okay, Bye-bye. sir. We'll continue. अगर कल हुआ तो we'll continue from here. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Bye-bye. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, Yes. sir. Thank you, sir. Bye, sir.